السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ گناہ گاروں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پل صراط جو بنایا ہے، اس پل صراط کی کیا مائند ہے، اس پل صراط سے کیا ہونے والا ہے، اس پل صراط پر کیا ہوگا۔ ویورز، پل صراط ایک وہ ایسی چیز ہے جو بال سے بھی باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار پر وہ بنی ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس پل صراط پہ جانے والا یا تو گھوڑے پہ سوار ہوگا یا جانور پہ، جو قربانی کے جانور وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ، کچھ کو ہتھوڑوں سے اور دھکا دے کے، کسی کو کچھ کوئی کٹ کے ایسے پل صراط میں گریں گے۔ وہ گناہ گار ہیں۔ جو اچھے لوگ ہوں گے وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز کہا جاتا ہے کہ وہ پل صراط پار کریں گے۔ چلیں ویورز، چل کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ہی سمجھ میں آئے گی۔ پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا مشہور پل۔ بلا شبہ ہم سب اس پل کو پار کریں گے جو بال برابر باریک اور تلوار کی دھار جتنا تیز ہے۔ کوئی بھی پل صراط کو اس وقت تک پار نہ کر سکے گا جب تک وہ سوالات کے 7 مرحلوں سے نہ گزر جائے۔ 7 سوالات، 7 مختلف پڑاؤ پر۔ یہ 7 سوالات کیا ہیں؟ کیا آپ ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں پل صراط کو یوں بیان فرمایا: پل صراط کو پار کرنے کا انحصار ہر ایک کے اعمال پر ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہوگا اور کچھ کے لیے بہت مشکل۔ یہ جہنم کا ایک پل ہے جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس میں کانٹے اور بیڑیاں ہیں جو ان کو گرفت میں لیں گے جسے اللہ چاہے گا۔ کچھ لوگ اس پر سے پلک جھپکتے گزر جائیں گے جیسے روشنی کی رفتار ہوا کی طرح، یا عالی نصب گھوڑوں اور سواریوں پر۔ فرشتے پکاریں گے: اے پروردگار سلامتی فرما، اے پروردگار سلامتی فرما۔ وہ لگاتار پکاریں گے۔ وہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کو خراش بھی نہ آئے گی، اور ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہتھوڑے سے مارا جائے گا، اور ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ جی ہاں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ لوگ خدا کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بنیاد پر اس پل کو پار کریں گے۔ کچھ لوگ اسے روشنی کی رفتار سے پار کریں گے، جبکہ دوسرے رینگ کر اس سفر کا اختتام کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ 79 آیت 6 میں درج ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 دفعہ سور پھونکیں گے، اور پہلی دفعہ سور پھونکنے پر سوائے ان کے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے، زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اس کی ہیبت سے لرز اٹھے گی، اور اس کے ساتھ ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ کیا ہولناک دن ہوگا ویورز، وہ دوسری سوچ بھی دفعہ نہیں کر سور سکتے۔ پھونکنے پر سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑیں گے تاکہ میدان حشر میں جمع ہو جائیں، روز محشر کا مقام۔ جو لوگ اس خوفناک قیامت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کو ان کے اعمال کا حساب دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات میں بتایا گیا ہے۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا تو یہ جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔ زمین پر ہمارے ساتھ کرامن کاتبین کے نام سے 2 فرشتے ہر وقت ہر جگہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے کیے گئے تمام اچھے اور برے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے۔ اعمال نامے کے حوالے سے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں بتایا گیا ہے: اور ان کے سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، پھر تو مجرموں کو دیکھے گا، اس چیز سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہے، اور کہیں گے افسوس ہم پر۔
ये कैसा अमाल नामा है कि उसने कोई छोटी या बड़ी बात नहीं छोड़ी, मगर सबको महफूज किया हुआ है। और जो कुछ उन्होंने किया था सबको मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। रोज़े महशर अमालनामा हमारे सामने रखा जाएगा। एक दफा अमालनामा मिल गया तो हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिरी मंजिल से पहले एक और पड़ाव भी है। एक ऐसा पड़ाव जो बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज है। एक ऐसा पड़ाव जिसे बगैर किसी इस्तिस्ना के सबको पार करना है। ये पड़ाव पुलिस सिरात है। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका इस पर से गुजर ना हो। ये तेरे रब पर लाजिम मुकर्रर किया हुआ है। अल्लाह ताला हमें हदीस सिरात के से मुताबिक बआसानी सिरात जहन्नुम तेज के बिजली ऊपर से भी एक तेज सीधा रास्ता है। करवाए। अल्लाह ताला से दुआ हर किया कोई इस करें। पर से गुजरेगा। ईमान वाले इस पर से अपने अमाल के मुताबिक तेजी से या आहिस्तगी से गुजरेंगे, जबकि काफिर और गुनाहगार लोग ठोकर खाकर जहन्नुम में जा गिरेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले पुलिस सिरात को अबूर करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। अगर लोगों के अमाल अच्छे होंगे तो वो तेजी से इस पर से गुजरेंगे। लिहाजा पुलिस सिरात पार करने के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा? पुलिस सिरात पर हर एक से उसकी जिंदगी के अच्छे अमाल और गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि पुलिस सिरात को 7 मरहलों पर सवालात के बगैर पार नहीं किया जा सकता। 7 पड़ाव के 7 सवालात। पहले पड़ाव पर जो पहला सवाल होगा वो हमारे ईमान के बारे में है। अगर हमारा ईमान कामिल है तो हम बासानी पहले मरहले से गुजर जाएंगे, लेकिन काफिर पहले ही मरहले में जहन्नुम में जा गिरेंगे। हम जानते हैं कि उन लोगों का आखिरी ठिकाना जहन्नुम है जिनको ईमान लाने का मौका दिया गया, लेकिन वो फिर भी ईमान नहीं लाए। खुदा ने अपनी पाक सिफात और नेक बंदों के जरिए अपना तारुफ करवाया, तो जो ईमान नहीं लाए बिलाखिर उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है। और जहन्नुम इतनी बेरहम होगी कि जब उससे पूछा जाएगा कि क्या तुम भर गई हो, तो ये चिल्लाकर कहेगी क्या और नहीं है। दूसरे लफ्जों में उस दिन तमाम काफिर जहन्नुम में झोंकने के बाद भी कोई चीज उसका पेट नहीं भर सकेगी। लेकिन डरे मत, अगर आप ईमान लाए और आपने नेक अमाल किए तो आपको रोज़े महशर की सख्तियों से पलक झपकते ही छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में सही सलामत रहे। अगर आप ईमान लाए लेकिन खुद को बचाने के लिए अच्छे अमाल जमा नहीं किए, तब भी आपके पास मौका है, वरना आपके गुनाह कांटे बनकर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इन कांटों से पीछा छुड़ा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो जहन्नुम की आग आपको निकलने की मुंतजिर होगी। अल्लाह ताला जहन्नुम के अज़ाब से बचाए बस। जैसा कि सूरह मरियम की आयत नंबर 72 में दर्ज है, फिर हम उन्हें बचा लेंगे जो अल्लाह सुब्हानो ताला से डरते हैं, और जालिमों को इसमें घुटनों पर गिरे हुए छोड़ देंगे। आइए इस पर बात करें कि हम इस पुल को कैसे पार करेंगे, जहां जहन्नुम अपनी तमाम तर होलनाकियों और दहशत के साथ हमारे कदमों तले होगी। हम कोशिश करेंगे कि इस पर नजर ना पड़े और हमारी तवज्जो अपने रास्ते पर मरकूज रहे। हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखेंगे। एक तरफ वो लोग होंगे जो अपने गुनाहों पर पछताएंगे, जबकि दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो जहन्नुम में जा गिरेंगे। वहाँ ऐसे लोग भी होंगे जो इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र करते थे, और वही होंगे जो इस पुल को तेजी से बगैर किसी तकलीफ के पार कर लेंगे। पहले सवाल के जवाब में कामयाबी के बाद हम वहां पहुंचेंगे जहां दूसरा सवाल पूछा जाएगा।
हमसे यहाँ नमाज के बारे में पूछा जाएगा, जो कि ईमान के बाद दीन इस्लाम का सबसे अहम सतून और इसके बुनियादी अरकान में से एक है। आपकी नमाजें जितनी मुकम्मल और खालिस होंगी, आपका हिसाब उतना ही आसान होगा। लेकिन अगर आपकी नमाज सही नहीं है तो शायद आपके अकीदे की इमारत गिर जाएगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जिसने इसको तर्क किया बस उसने पूरे दीन को मुनहदम किया। अगर हम जहन्नम की आग से बचना चाहते हैं तो हमें यकीनी तौर पर अपनी नमाजें एक इमारत के मजबूत सतून की तरह कायम करनी होंगी। अगर हम जमीन पर सुई के नाके से भी जहन्नम की आग देख लें तो सजदे से सर नहीं उठाएंगे। ठीक है, हमारा ईमान मजबूत है और हमारी नमाजें भी दुरुस्त हैं। अब हम तीसरे मरहले में दाखिल होंगे। अगर हमने दुनिया में खुदा के माल को उसकी हदायत के मुताबिक खर्च नहीं किया तो अगला सवाल हमारे लिए परेशान कुन होगा, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपना माल कहाँ खर्च किया और किसके साथ बांटा। क्या हमने ज़कात अदा की? हमसे सवाल होगा। इस बारे में गौर कीजिए। आपने जिंदगी इस ख्याल के तहत गुजारी कि खालिक का अता करदा माल आपका अपना है और ज़कात जिसका हुक्म खुदा ने बांटने के लिए दिया, आपने इसे मुस्तहकीन को देने के बजाय उनसे छुपाने को तरजीह दी। हमें ऐसी सूरत हाल से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अगर हम अपना माल छुपाएंगे तो जन्नत भी हमसे छुप जाएगी। अगर हमने अपना माल खुदा की हदायत के मुताबिक कमाया और खर्च किया तो अगले पड़ाव पर हमसे रोजे के बारे में सवाल किया जाएगा, जो कि हम पर इसी तरह फर्ज है जिस तरह पिछली उम्मतों पर फर्ज थे। अगर हम इस पूछ के दौरान काश जैसा लफ्ज अदा नहीं करना चाहते तो हम पर लाजिम है कि माजी में हीलों बहानों से जो रोजे छोड़े हैं उनकी कज़ा अदा करें। इसके बाद हम 5वें पड़ाव पर होंगे। इस पड़ाव पर हमसे हज के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप माली मसाइल की वजह से हज नहीं कर सकते तो माली इस्तेहकाम के बाद जिंदगी में एक दफा जरूर हज करें। अगर हम इस्तात होने के बावजूद हज अदा नहीं करते और बहाने बनाते हैं तो हम संगीन नताइज का सामना कर सकते हैं। छठे पड़ाव पर हम इस मौजू की तरफ आएंगे जो बिना इस्तिस्ना के हर किसी से मुतल्लिक है। ये मौजू हकूक़ुल लिबाद और सिला रहमी है। हम हमेशा दूसरों का हक गजब करके उनके हकूक नजरअंदाज करते हैं, ताहम बहुत सी चीजें लोगों के हकूक में शुमार होती हैं। बाज़-औक़ात हम ऐसा ला इल्मी में करते हैं, बाज़-औक़ात हम जानबूझकर ऐसा करते हैं ये समझ कर कि कुछ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हम ये जाने बगैर कि आया ये सच है या नहीं किसी के बारे में बातें फैलाते हैं, लिहाजा हम आसानी से बहतान या ग़ीबत का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे दीन में खानदान और रिश्तेदारों का तसव्वुर बहुत अहम है, लिहाजा इसको बहुत अहमियत देनी चाहिए। ताहम हो सकता है कि हम अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ हमेशा ना रहें, हमें उनके कुछ रवैये नापसंद हो, लेकिन हमें उनसे मुकम्मल कता ताल्लुक नहीं करना चाहिए। आइए सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन की हयात पर नजर डालें। चंद सहाबियों के वालिदैन मुसलमान ना थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने वालिदैन को खुश करने की कोशिश की, सिवाय उन मामलात के जिनसे खुदा ने मना किया था। जब हम उन तमाम मराहिल से गुजर जाएंगे तो हमसे तहारत यानी गुस्ल का सवाल होगा। अगर हम पिछले 6 सवालों में कामयाब रहे, खुदा के फजल से हम उन लोगों में शामिल होंगे जो सफाई को तरजीह देते हैं। अगर हम तहारत का ख्याल ना रखते तो पिछले सवालात में कामयाबी भी मुमकिन ना होती। इन तमाम सवालात के बाद जहन्नुम अपने हकदारों को ले लेगी और जन्नत खुदा से अपने रिहाइशों का सवाल करेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, बहुत से लोगों को पुल सिरात का पता भी ना चलेगा और वो फरिश्तों से इस बारे में पूछेंगे कि वो जहन्नुम और पुल सिरात कहाँ हैं, क्या हमने इसे अबूर कर लिया? फरिश्ते जवाब देंगे,
कि तुम जहन्नुम के ऊपर इस पुल को पार कर चुके हो, लेकिन तुम्हारे अमाल के नूर की वजह से जहन्नुम की आग बुझ गई और ढांप दी गई। कहा जाता है जहन्नुम की आग मोमिनीन से कहेगी, ए मोमिनो, मेरे ऊपर से तेजी से गुजरो, क्योंकि तुम्हारे अमाल का नूर मेरी आग को बुझाता है। खुदा की मर्जी होगी तो हमें जन्नत बतौर इनाम मिल जाएगी, जो कि इस सफर के इख्तिताम पर एक खूबसूरत जगह है। ऐसी खूबसूरत कि किसी आंख ने ना देखी, किसी कान ने ना सुनी, कोई इंसान ख्वाब में भी जन्नत की खूबसूरती का तसव्वुर नहीं कर सकता। नेक अमाल के साथ जिंदगी गुजारना इतना भी मुश्किल नहीं है। हमें ज़माने आखिर के खुशगवार हथकंडों से बचने के लिए कुछ खास इकदामात करने की जरूरत है। याद रखिए कि हमने जितनी बातें कही सब दुरुस्त हैं और लाजमन वकूअ पजीर होंगी। तो क्या दुनिया में आरज़ी जिंदगी के लिए आखिरत तबाह करना जरूरी है? ठीक है, आपको किसकी ज्यादा फिक्र है, दुनिया के आरज़ी पुल की या उस पुल की जो अब्दियत की तरफ लेकर जाता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। व्यूअर्स, आपने देखा पुल सिरात का वो मंजर वो वही समझ सकता है जो उस वक्त वहाँ खड़ा होगा। लोग कट कट कर गिर रहे होंगे, जो नेकोकार होंगे वो मक्खन में से बाल की तरह बिजली से तेज पलक झपकते ही वो पुल सिरात पार कर चुके होंगे। अल्लाह ताला हमें वो जो 7 एहकामात बताएं, अल्लाह ताला हमारे सारे एहकामात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। गीबत, कीना, इन सब अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से बचाए। दोज़ख जो है, दोज़ख वो चीज़ है जिसका ईंधन जो है वो इंसान है और नॉन मुस्लिम के भगवान। जिस तरह यहाँ आग लगाने के लिए लकड़ियाँ डाली जाती हैं, इस तरह वहाँ के ईंधन के लिए इंसान डाले जाएंगे और बुत, नॉन मुस्लिम के जो बुत होते हैं जिसको पूजा करते हैं वो डाले जाएंगे। और कहा जाता है कि दोज़ख की आग जो होगी ना वो ऐसी होगी कि वो खुद जाके लपकेगी, खुद पकड़ेगी दूर दूर से। अल्लाह ताला हमें दोज़ख के अज़ाब से बचाए। अल्लाह ताला हमें ईमान की मौत दे, ईमान पे खात्मा करे। नामा अमाल अल्लाह ताला हमारे सीधे हाथ में नसीब अता फरमाए। बुराइयों से बचें, गिबतों से बचें, हुकूकुल इबाद ये भी फ़र्ज़ हैं। व्यूअर्स, बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के हुकूकुल इबाद अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स में अपनी राय बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि